आज हम लोगों ने AICC की तरफ से आपको एक स्पेशल ब्रीफिंग के लिए तकलीफ दी है, क्योंकि ये बहुत सिलसिला बढ़ता ही जाना है। और कई दफ़ा हम लोग हिंदी में कहते हैं उल्टा चोट कोतवाल को डांटे, ये कुछ वैसा ही किस्सा होता चला जाता है। क्योंकि अभी हाल में शायद कल या परसों प्रधानमंत्री ने PTI को एक इंटरव्यू दिया और वहाँ उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बातें कही कि हमारी पार्टी का नेतृत्व, हमारे शीर्ष नेता इलिटरेट हैं लेजिस्लेटिव मामलों में, और दूसरे मंत्री भी जब उनसे उनकी देखा देखी कहते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए, हमें होमवर्क करना चाहिए और हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ सबक सीखने चाहिए। जैसे कल राहुल जी ने कहा पाठशाला, प्रधानमंत्री ने भी वो चाहते कि हम भी करें। लेकिन मैं आज आपके सामने अपने साथियों के साथ कहना चाहती हूँ कि लेजिस्लेटिव इलिटरेसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्रॉपर्टी या कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क और इंस्ट्रूमेंटैलिटी के विपरीत काम करना आज किसका हॉलमार्क बन गया। आप कैबिनेट को लीजिए, पिछले एक साल से एक टूथलेस बंडल बनता चला जाता है और ये कुछ अपने आप से नहीं हुआ। This toothless bundle which the cabinet is today called was done as a process of deliberate whispering campaign। शायद आप लोगों को याद हो कि बहुत पहले के कुछ महीनों में जब मोदी सरकार आई थी, that there was a whispering campaign against several ministers, and all of us used to spend time guessing whether one of them is the Home Minister, or whether one of them is the Environment Minister, or whether one of them is the Food and Civil Supply Minister, and so many others. This campaign was done as a part of strategy to demoralize and demolish individual personalities of colleagues in the cabinet. We all know that the cabinet is not run as it used to be run for the last 10 years under the UPA. Each minister was responsible for the papers given by his or her ministry. Today the papers just come and only those who are allowed to speak will speak. We also have a denigration of parliament। मेरा ख्याल है कि 67 years में ये पहली मर्तबा है कि parliamentary practices are being set aside। A deliberate, conscious attempt not to have discussions in parliament for a certain length of time on important bills, to avoid the utilization of select committee formations on important bills, joint select committee, sending bills to standing committee. All this is being avoided, and what we call an ordinance Raj is attempted to be established. It's a vigilant opposition. It is because we have the numbers in Rajya Sabha that we are able to stand up to this onslaught of parliamentary practice. But there is a definite, the second charge I make, first is that the cabinet has become a toothless bundle. The second charge is that parliament is being denigerated and has become like a club for passing ordinances, where the finance minister, the leader of the upper house, has been known to say that Rajya Sabha should not question the Lok Sabha. This is for the first time that such an utterance has been made by the leader of the upper house. That both houses are equal except in pertaining to finance. Even
That has been circumvented. Important bills like the finance bill के साथ साथ और बिलों को जोड़ा जा रहा है in order to bypass the lack of numbers they have in their agenda. They talk of extra constitutional authority. प्राइम मिनिस्टर ने बहुत उत्तेजित होकर और कहा जा रहा है अखबारों में और टेलीविजन चैनल्स में कि पहली बार उन्होंने इस सब्जेक्ट को सीधा चैलेंज किया है सूट बूट की सरकार को, पहली बार उस पर अपना टिप्पणी दी है। उन्होंने पहली बार टिप्पणी दी है कि भाई लैंड बिल वो इस तरह से क्यों ला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नहीं ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी तो यूपीए के वक्त होती थी। शायद पीएम को याद दिलवाने की जरूरत है कि यूपीए के 10 सालों में कोऑर्डिनेशन कमेटी होती थी अलायंस पार्टनर्स के साथ। जब लेफ्ट पहली यूपीए में शरीक था तो लेफ्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी थी। कोर ग्रुप होता था जहाँ कांग्रेस का नेतृत्व, कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रधानमंत्री और इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स के साथ विचार विमर्श करते थे। पार्टी की पॉइंट ऑफ व्यू सरकार तक पहुंचती थी। एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते थे, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते थे। ये सब सिलसिला बंद हो गया। अब आपको मालूम है अकाली दल शायद एक ही इनका एक पार्टनर बचा होगा, शायद 1-2 पार्टनर जो हैं जो उनके साथ लगाया और कब से रट लगाए हुए हैं कि पंजाब को एक पैकेज मिले। आज किसी भी लीडर पंजाब, ना भाजपा के लीडर ना अकाली दल के लीडर की हिम्मत है क्योंकि केंद्र से कह दिया गया कि कोई पैकेज नहीं मिलेगा। बस इस तरह से कहने का मतलब हर फोरम, हर प्लेटफॉर्म जहाँ कुछ बोलना चाहिए, कुछ नई बात जहाँ लोगों की बात उठानी चाहिए, वो सब इस तरह से खत्म किए जा रहे हैं। और जहाँ तक जुडिशरी की बात है, मुझे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए दोबारा दोहराने की, क्योंकि कई दफा हम सबको खुद महसूस होता है कि जुडिशरी एक ऐसा विंग है, ऐसा स्तंभ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट इम्पोर्टेंटली पीपल बिलीव इन द जुडिशरी। कोर्ट में कोई मामला है तो उसको मान्यता मिलती है। और आप सबको मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कॉन्फ्रेंस में कितने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप लोग प्रभावित हो जाते हैं 5 स्टार एनजीओ से। आप लोग प्रभावित होकर, उनका कहने का मतलब शायद ये रहा हो कि आप प्रभावित होकर एक्स्ट्रा इश्यूज को मद्देनजर रखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को नजरअंदाज करते हुए आप अपनी जजमेंट देते हैं। ये प्रधानमंत्री के वक्तव्य है। अब आप मुझे बताइए कि कभी कितने सालों पीछे आप देखें, कभी भी इस तरह से जुडिशरी को आगे हाथ लिया गया। हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ जजेस कहते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। ये प्रधानमंत्री खुद दिखाते हुए कि उनसे ज्यादा और कोई महत्व रखता नहीं, ये बात उन्होंने कुछ बड़ी कॉन्फ्रेंस में कही, बहुत सी बातें कही। शायद यूपीए ने हमेशा ये कहा कि ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस और एम्पावरमेंट ऑफ द सिटीजन टू फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन ऑफिशियल फाइल। हमने आरटीआई जैसा एक बात ब्रेकिंग लेजिस्लेशन पाई। आज क्या है, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने स्वयं लोकसभा में इस बात को एम्फसाइज किया कि 1 साल हो गया है, 9 महीने 8 महीने कई पोस्ट के लिए हो गए हैं। ना लोकपाल की नियुक्ति, ना सीबीसी की नियुक्ति, ना चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति और बहुत सी ऐसी नियुक्तियां जो होनी चाहिए थी नहीं हुई। क्या कारण है, क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं जरूरत महसूस हो रही ये नियुक्तियां करने की। जब आप प्रचार करके तो ये आए थे कि आप स्कैम
और भ्रष्टाचार को खत्म करना चाह रहे हैं और 1 साल में हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। जब तक ये इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एंटिटीज की स्थापना नहीं होगी, नियुक्तियां नहीं होगी, तो आप कैसे करेंगे? यहाँ तक कि हम लोग सब अपने व्हाट्सएप में या दूसरे सोशल मीडिया में देखते हैं कि महिला, और मुझे हमदर्दी जरूर है, महिला होने के नाते मुझे हमदर्दी है, और मैं समझती हूँ जागरूक सिटीजन होने के नाते वी शुड बी वेरी कंसर्न देयर इज अ महिला इन दिस कंट्री, यशोदा है, जो बार बार मुद्दे उठा रही है और आरटीआई से और दूसरे एजेंसी से उनको कोई जवाब नहीं है। मुझे हैरानी ये बात होती है कि ये मुहिम क्यों नहीं बनी? हम लोग सब सेंसिटिव हैं, संवेदनशील है कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो यहाँ एक महिला चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि वो अपने अस्तित्व के बारे में कुछ जानना चाहती है। वो कहाँ है, किधर, किसमें, किस पानी में तैर रही है, या कहाँ है उनका अस्तित्व इस समाज में क्या है, और कोई उनको जवाब देने के लिए तैयार नहीं, और ये हमारी हेडलाइंस बने नहीं। तो इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इन तमाम इंस्टीट्यूशंस को किस तरह से आज बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। हाल में सीएजी का मामला उठा था राज्यसभा में। मुझे याद है कि जब 2G और कैब वगैरह की बात होती थी और सीएजी की रिपोर्टें आती थी, तो दिन रात यही टेलीविजन पर चलता था और अखबारों की सुर्खियां बनती थी। तब तो सीएजी की रिपोर्ट को बिल्कुल एक सेक्रेट डॉक्यूमेंट की तरह माना जा रहा था। जब हम कहते थे कि पहले पीएसी इसका जायजा ले ले, लुक थ्रू इट, तब कहा जाता था नहीं सीएजी की रिपोर्ट है और ये बिल्कुल सच है। आज क्या हो रहा है? वही सीएजी, वही कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी जब इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स को भेजती है, तो फिर हमारे लीडर ऑफ द हाउस कहते हैं कि डोंट गिव टू मच इम्पोर्टेंस एंड द सीएजी शुड नॉट वर्क टू गेट हेडलाइंस इन न्यूज़पेपर। तो मेरा कहने का ये सब मतलब ये हो रहा है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। जब इनको इलेक्शन जीतना था, तब तो इनकी बड़ी बड़ी बातें हम लोगों ने इन तमाम मुद्दों में हम रोज सुनते थे, बहुत भाषण सुनते थे, लाखों लोग इकट्ठे किए जाते थे भाषण में ताली बजाने के लिए। और आज जब इन पर जिम्मेवारी आई है, तो हम देख रहे हैं कि एक एक मुद्दे को आप नजर अगर दोहराएंगे तो आप देखेंगे कि लोकपाल हो या कोई और ऐसी एंटिटी हो, उसको बिल्कुल अहमियत नहीं दी। और जहाँ तक मीडिया की बात है, हम इससे बेहतर जानते हैं कि मीडिया के बारे में प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि मीडिया बहुत बेदारू हो गया है, बेदारू हो गया है। हो सकता है कि वो आप सबकी कदर ना करते हो। आप लोगों के जो big media houses के owners हैं, they probably have a direct link to the Prime Minister and sometimes like that. So there is a double facedness even as far as the media is concerned. The VK Singh's comment, which I just don't want to repeat. Look what's happened today in Chennai. At the IIT, our NSUI unit has just had a demonstration and they all put in arrest. But because a student study circle group, Ambedkar Periyar study circle, young boys and girls feel that they have a right under the Constitution of India to criticize the policies which they don't like, and they criticize, you disband them. You want to put an end and close up their study circle. Is this how the way media is going to be treated? I myself am associated with the media. I could make this a much longer course, which I am not going to do. But the difference in the attitude today for me towards media, and the difference in the attitude of the ruling party when it was in the opposition
towards media when we were having the UPA is two different poles apart. So I just want to today highlight this, that 10 years of UPA were run according to democratic practices, best practices for alliance government, best practices with a common minimum program and a report to the nation every year. Today, all that has been put to rest. The ministers are, as I said, trembling before the Prime Minister. There are people who come and say that the ministers are so petrified of the Prime Minister. And as the economist calls him the single man band, he doesn't appreciate anybody. That today if the Prime Minister says that Dr. Manmohan Singh was sitting as the Prime Minister but was not allowed to work, how can he even say such a thing? I have still not forgotten Madison Park and the much touted meeting of the Prime Minister in the United States of America. 31 representatives of the House of Representatives and Senators were on the stage, and our elected member of Parliament, the Foreign Minister of India, sat with the audience down below, not on the stage. Who humiliated ministers? The UPA leadership or Mr. Modi? He will not share the stage where any praise is due with any of his ministers. So today the purpose of this press conference is to definitely say that the pot cannot call a kettle black. If the Prime Minister has demoralized his cabinet colleagues, if he has denigrated the role of the Parliament, if he is trying to overhaul all the judiciary, he has to look into his own style of functioning before he takes off and speaks about the leadership of our party.